Dear students, today I am going to tell you about determinants of natural resistance, or I am going to give you an overview of innate immunity. Uh, we know that immunity is the word which is used for our body system, defense system, which provides us protection from different diseases. Uh, Immunity word has come from Latin word immunitas, immunitas, which means freedom from. So we get freedom from various diseases. A type of immunity is innate immunity. It is innate in the sense that they are not affected by prior contact with the infectious agent and take immediate effect upon encounter with anything that our immune system deemed to be an unwelcome guest. What does this mean? That innate immunity works uh, against each and every foreign invader which our system recognizes as non or not self. It may be a pathogen or it is not infectious at all. Still, हमारी बॉडी उसको डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि whether it is infectious or not. So accordingly, it treats it and provides protection to our body. Second thing is that we don't need uh, we need protection, and innate form of immunity doesn't require prior contact with the infectious agent. प्रायर कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई इन्वेडर या इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. Innate immunity के जो components हैं, they will recognize them for the first time only as not self, and they will start fighting against them. They will try to eliminate those things out of our body. So there is no need of any prior contact. And also they start fighting with that substance immediately. There's no time lag between the entrance of invader and the protection offered by our immune system. So I have divided various responses into various sections, and first of which is physical barriers at body surfaces and physiological factors. इसमें I'm going to tell you a number of things. First is intact skin. So long as our skin is intact, there is no cut, there is no bruise, any microorganism cannot enter from our intact skin. Undamaged skin cannot give entry to any substance, whether it is infectious or not, whether it is foreign particle or not. Nothing will go inside our body through intact skin. Second is mucus coating. For example, in our nose, in our gut, the internal lining is coated by mucous membrane. This is an anatomical trap. इसमें क्या होता है? कुछ भी आता है. Invader, pathogenic, non-pathogenic, substance or microorganism, whichever comes in our nose, mucus coating entraps it.
म्यूकस में वो लिपट जाता है, उसको आगे बढ़ने को के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि म्यूकस जो है, म्यूकस कोटिंग उसको रोकती है. It will not gain entry through mouth to our lungs, through our nose to lungs. So एक ट्रैप की तरह बिहेव करता है ये म्यूकस कोटिंग. Shedding of cells. These surfaces, internal surfaces and skin as well, ये इनमें लगातार शेडिंग होती रहती है. बाहर वाली जो सेल्स है, आउटर लाइनिंग है, वो डेड हो जाती है और वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती रहती है. तो इवन इफ समथिंग इज सम स्टिकी थिंग इज अटैच्ड टू अवर आउटर लाइनिंग, देन सेल खुद ही गिर जाएगा. तो शेडिंग ऑफ cells takes place continuously in our body. Beating of cilia. Again, cilia क्या है? हमारी नोज में जो हेयर्स हैं, वो सीलिएट, हमारी नोज जो है म्यूकस से लाइंड है, प्लस वहां पे सीलिया भी है, बाल भी हैं, जो थ्रू आउट एक बुश लाइक स्ट्रक्चर बना के एंट्री भी नहीं देते हैं. अगर एंटर हो जाता है तो म्यूकस फिर उसको कोट करके कोशिश करता है कि नोज से ही स्नीजिंग के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी से बाहर कर दें, जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है. सिमिलरली थ्रू कफिंग. कफ भी म्यूकस है, जो अगर गले में हमने माउथ के थ्रू कुछ ले लिया तो वी विल कफ एंड एलिमिनेट दैट unwanted thing out of our body. Similarly, if it reaches to our gut, we may vomit. बहुत खराब चीज कोई खा लेते हैं, कड़वी होती है या टेस्ट में खराब होती है, किसी तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो टेस्ट में नहीं अच्छी होती हैं, इसलिए क्योंकि दे माइट हार्म अस ऑल्सो. आप देखिएगा कि ज्यादातर चीजें जो खराब स्वाद की होती हैं, या कहीं पे फंगस ग्रोथ हो गई, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, अननोइंगली इफ वी ईट दैट, तो एक बिटर सा अजीब सा स्वाद आएगा. सो अगर वो बॉडी में फिर भी पहुंच गया थोड़ा बहुत भी, तो पॉसिबिलिटी है कि वी में वॉमिट, वी विल स्टार्ट फीलिंग नॉसिएटेड एंड देन वी विल वॉमिट दैट आउट ऑफ आवर बॉडी. अगर वो फिर भी आगे निकल गया, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई पैथोजन, कुछ भी आगे हमें इंटेस्टाइन्स में पहुंच गया, तो वी विल डेफिनेटली गेट डायरिया. तो डायरिया के थ्रू, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू एंड वॉमिटिंग के थ्रू वी एलिमिनेट वेरियस अनवांटेड थिंग्स from our body. Then body temperature raises. हमें फीवर क्यों आता है? फीवर का पर्पस क्या है? अगेन वो दैट इज प्रोवाइडिंग नेचुरल रेजिस्टेंस टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. बॉडी की अगर कोई लाइव थिंग है, कोई लाइव बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के कोशिश करती है कि वो किल हो जाए, और जब किल हो जाएगा देन दैट विल बी dealt with various components of our immune system. Similarly, oxygen tension. अगर कोई चीज हमने कहा कि यहाँ से म्यूकस उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा नोज से, फिर भी वो पहुंच जाता है लंग तक, देन देयर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एक एनवायरनमेंट मिलता है. उस ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में every pathogen or every microorganism cannot survive that much of oxygen present in our lungs. Then aging. We know that young and aged persons get ill very quickly. Young children में तो एक्चुअली इम्यून सिस्टम मैच्योर ही नहीं होता. After birth, our immune system starts developing.
and it reaches its peak or maturity on puberty. Puberty means around 12 to 14 years. At that time, by that time, we get a mature immune system. तो मेच्योरिटी नहीं रीच करती है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सी डिजीजेस हमें लगती हैं और छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं. वो लगातार एक्सपोज होते रहते हैं एनवायरनमेंट से, डिफरेंट वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, एंड they go on learning, our immune system go on learning, in the sense that they learn to recognize these foreign particles, and they develop fighting system against them, as a result of which शुरू में तो फॉरेन इन्वेडर्स ही डिजीज कॉज कर देते हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनसे कि ये लर्निंग हो जाती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी बॉडी को के लिए अनफेवरेबल है, और नेक्स्ट टाइम अगर ये आए तो हमें उसे अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना है. बट चिल्ड्रन गेट इल. वो इन्वेजन जो है वो बीमारी भी ला देता है. सिमिलरली ड्यूरिंग एजिंग और ओल्ड पीपल ये होता है कि उनका इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के, वो ख़त्म होने की स्टेज पे आते हैं. वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं और उनकी पावर कम होने लगती है. दिस इज हाउ they are more susceptible to various diseases. Hormonal balances, with aging or with individual differences, hormones also play role in the metabolism. और हार्मोन जैसे जैसे चेंज होते हैं उनके लेवल्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. Like in diabetic patients, insulin is less, or absence of insulin is seen, और उसकी वजह से फिर कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड. कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब कि मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस. अब वो फुल स्ट्रेंथ से, जो कि हमारे मिडिल एजेड पर्सन्स में जो फुल कैपेसिटी से इम्यून सिस्टम वर्क करता आया है, वो अगर हार्मोनल बैलेंस, करेक्ट हार्मोन्स नहीं मिलेंगे, करेक्ट अमाउंट में नहीं मिलेंगे, देन दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस, और उसमें फिर वी आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस. Now there is one more thing, that genetic control is also there, or role of heredity. If one homozygous twin develops tuberculosis, the other twin has a 3 to 1 chance of developing disease compared to a 1 in 3 chances if the twins are heterozygous. आई होप कि आप होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस ट्विंस समझते होंगे. एक सेल, एक एग अगर फर्टिलाइजेशन के बाद 2 एग्स में टूट जाता है और उन दोनों से बेबीज होते हैं, या जो 2 फीटस होते हैं, वो होमोजाइगस कहलाते हैं. इफ देयर आर 2 एग्स सिंस वेरी बिगनिंग, और दोनों फर्टिलाइज होते हैं, दोनों से बेबीज होते हैं, तो वो हीट्रोजाइगस होते हैं. तो जो 2 हीट्रोजाइगस बेबीज है वो किसी दूसरे भाई बहनों की तरह होते हैं, तो उनके अपने अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं. बट अगर एक एग से स्प्लिट होके ट्विंस बन रहे हैं तो उनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक सा होता है, दैट एंड सो उनमें हर कुछ जो है वो एक सा, मतलब उनके उनमें डीएनए एक सा है, इसलिए उनके सारे रिस्पॉन्सेस एक से होते हैं. इसका और भी एग्जांपल है, ड्यू टू हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल,
red blood cell or sickling, which are less readily parasitized by Plasmodium falciparum, thus conferring insusceptibility to malaria. सिकल सेल एनीमिया की आपने बात सुनी होगी. सिकल सेल एनीमिया में वैसे तो ये डिजीज है, उसमें रेड ब्लड सेल जो है वो सिकलिंग मतलब एक सिकल लाइक शेप ले लेता है और उसमें हीमोग्लोबिन कैरी करने की कैपेसिटी कम होती है. बट उसकी वजह से दूसरा क्या एडवांटेज मिल रहा है कि प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम जो मलेरिया का पैरासाइट है वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, और इसलिए सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को होता है वो उनको मलेरिया नहीं हो सकता है. सो दीज आर जेनेटिक फैक्टर्स which contribute towards natural resistance. Similarly, there is one more example of species and a strain. Actually, what happens that we are susceptibility to an infection does not always imply a lack of resistance, because although man is highly susceptible for the common cold, he overcomes the infection within a few days. Dogs, in contrast, are not susceptible to virus agent responsible for the common cold in man. In some diseases, although a species may be difficult to infect, that is insusceptible, once established, the disease can progress rapidly. That is, there is lack of resistance. One such example is rabies. Rabies, common to both man and dog. Virus penetrates healthy skin with difficulty. But once infection is established, however, the resistance mechanisms in both species are not able to overcome the disease. रेबीज जो है, रेबीज आपने सुना होगा कि कुत्ते के काटने से होती है ना. जब तक हमारी स्किन इंटैक्ट है, दैट वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट अस. बट अगर कुत्ते ने हमें काट लिया, हमारी स्किन में कट लग गया और वो खुद रेबिड डॉग है, उसमें रेबीज का वायरस है, तो वो वायरस हमारी बॉडी में चला जाएगा. अब कहते हैं कि ना तो हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं, फाइनली डेथ हो जाती है. सिमिलरली वो डॉग जिसमें की रेबीज है वो ऑलरेडी कहा जाता है कि ये पागल हो गया है, इसको बंद करो, इसको शूट करो, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाएगा. ना तो डॉग उस इन्फेक्शन को टॉलरेट कर पाता है और ना ही ह्यूमन बींग्स उस इन्फेक्शन को टॉलरेट कर लेते हैं. सो स्पीशीज और स्ट्रेन का डिफरेंस होता है ससेप्टिबिलिटी एंड इम्यूनिटी टू वेरियस डिजीजेस. सेम डिजीज सेम स्पीशीज को में होती है, दूसरे में नहीं हो सकती है, या एक बार हो जाती है तो दोनों में रेजिस्टेंस नहीं है, वो दोनों इन्फेक्ट हो जाते हैं. नाउ second category is of chemicals and biochemical inhibitors of infection. Sebaceous gland secretions. We know sebaceous glands कहाँ होती हैं? स्किन में होती हैं. स्किन में हेयर्स के थ्रू वहाँ पे हेयर फॉलिकल जहाँ होता है वहाँ sebaceous glands होती हैं, और उनमें जो secretions होते हैं they resist infection. तो स्किन पे जो हमें स्वेट आता है उसमें जो भी सॉल्ट्स और केमिकल्स निकलते हैं वो बहुत से इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमारी स्किन पे ठहरने नहीं देते, वो वहां से हट जाते हैं, किल हो जाते हैं. इन टीयर्स वी हैव लाइसोजाइम्स. टीयर्स ऑन वन हैंड दे हैव वॉशिंग एक्शन. जब टीयर्स निकलते हैं तो वो पूरी आंखों को वॉश करके निकलते हैं.
तो सिंपली मैकेनिकल काम भी है कि वॉशिंग हो गई, अदरवाइज उसमें एंजाइम है लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल कर सकता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन एसिड, एसिड किस तरह के कौन से कहाँ कहाँ है? यूरिन का पीएच आपको जो पता है कि हाई साइड में होता है, सॉरी पीएच एसिडिक होता है। वजाइनल फ्लूइड इज आल्सो एसिडिक एंड स्टमक में HCl रिलीज होता है जब हमारा खाना पहुंचता है वहां पे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो वैसे अदरवाइज आवर बॉडी रिएक्शन इज अल्कलाइन। तो अल्कलाइन होते हुए भी कोई चीज अंदर आ गई है, अगर वो इट इज सर्वाइविंग इन अल्कलाइन पीएच, तो इमीडिएटली, और वो अनवांटेड है हमारी बॉडी के लिए, तो इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक में एसिडिक पीएच की वजह से उसकी किलिंग होगी। अदरवाइज हमारे दूसरे ऑरिफिसेस में जो रिएक्शंस हैं वो भी एसिडिक हैं, जो भी ओपन एंडिंग है उनमें चूंकि एसिड पीएच है, तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंगस, वो अनवांटेड organism or particle will be destroyed at that low pH. Next category, we have phagocytic cells, जिनके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे जब innate immunity को contribute कौन कौन करता है, मतलब these are determinants. This is how innate immunity is determined. But who does this? उनके बारे में हम डिटेल में अभी आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि नेचुरल रेजिस्टेंस किस किस तरीके से मिलता है। सो बाय फैगोसाइटोसिस, एक प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस का, उसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। आफ्टर रिकग्निशन ऑफ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ molecular organisms, phagocytic cells like neutrophils and monocytes are capable of doing phagocytosis. न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। phagocytosis is a process of eating microorganisms, and whenever there is injury, they migrate to site of injury. They go on doing surveillance in our various tissues and vessels, and when there is any injury, they migrate to the site of injury to eat that phagocyte and eliminate its harmful effects from our body. मोनोसाइट्स भी दूसरी वैरायटी है सेल्स की, जो इम्यून सेल्स की, जो ब्लड में जब तक रहते हैं दे आर इमेच्योर. इनका मेच्योर फॉर्म इज नोन एज मैक्रोफेजेस. दीज मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस, और जो मैक्रोफेजेस हैं वो वेरियस टिश्यूज में रहते हैं. तो ये मोनोसाइट्स भी और मेनली न्यूट्रोफिल्स, दे माइग्रेट टू साइट ऑफ इंजरी टू phagocytose microorganisms, harmful things. Next category है determinants की, जो innate immunity को determine करते हैं हमारी बॉडी में. तो बहुत सारे इतने फैक्टर्स हमने बताए, अभी बहुत सारे और भी हैं, soluble और humoral factors with antimicrobial activity. इनकी एक समरी आप देख लीजिए. Normal serum can kill and lyse gram-negative bacteria due to presence of antibodies and complement components. First of all, what is normal serum? Normal serum, if we take blood in a test tube and let it stand for some time, we will see that blood has clotted. अब क्लॉटेड ब्लड में उसके सराउंडिंग में आप देखिए तो येलो कलर का फ्लूइड दिखेगा. दिस फ्लूइड इज सीरम. तो होल ब्लड है, होल ब्लड से
पेल येलो कलर का फ्लूइड जो बाहर आया, जिसमें कि ब्लड का क्लॉट नहीं है। ब्लड का क्लॉट किससे बनता है? आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स मालूम होंगे, फाइब्रिन है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर ब्लड में से माइनस कर दिया जाए तो जो फ्लूइड बनता है वो पेल येलो होता है, एंड दैट इज नोन एज सीरम, एंड दैट कंटेन्स ह्यूमरल फैक्टर्स which have antimicrobial activity. So it can lyse gram-negative bacteria. यहाँ पे एंटीबॉडीज मिलेंगी। एंटीबॉडीज क्या होती है वो हम आगे चल के फिर से पढ़ेंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट components, these are again more than 30 proteins which work together for innate immunity. तो इनको ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स वहां प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में है, और वो पेल येलो पार्ट ऑफ ब्लड में, क्लॉटेड ब्लड में है, तो और उसको नॉर्मल सीरम कहते हैं। इसके बाद नॉन एंटीबॉडी फैक्टर्स, ये तो एंटीबॉडीज हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया लाइज कर रहा है। तो कुछ नॉन एंटीबॉडी फैक्टर्स भी हैं। नॉन एंटीबॉडी डिपेंडेंट फैक्टर्स कहना चाहिए। तो ऐसे होते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, प्रोपर्टीन, बीटा लाइसिन, इंटरफेरॉन्स, लैक्टोफेरिन एक्सेट्रा। हम हर एक के शॉर्ट में फंक्शंस देख लेते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे भी इंजरी हुई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, तो उसको किल करने के लिए जो भी डिफरेंट सेल्स आते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे कि ये केमिकल्स का काम क्या है? कीमोटैक्सिस करना। वो अभी देखा था कि न्यूट्रोफिल जो है फैगोसाइटोसिस करता है, तो ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो है हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को साइट ऑफ इंजरी पे लाने के लिए। और इनका एंटीबॉडी से कोई मतलब नहीं है, ये एंटीबॉडीज नहीं है, ये सिर्फ केमिकल्स हैं। देन प्रोपर्टीन ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पार्ट है जो इम्यून सिस्टम में काम करता है। बीटा लाइसिन इज रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स। अगेन प्लेटलेट्स कहाँ पे डिस्चार्ज हुई, या वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर वहाँ पे आ गया तो उसके लिए प्लेटलेट्स अपना वो डिस्चार्ज होते हैं और दे रिलीज बीटा लाइसिन in the surrounding tissue. Now interferons are present in the blood or tissue wherever these are released actually, and these are produced by virally infected cells. जब वायरस से कोई सेल सिक हो जाता है और वो फिर वो सिग्नल देता है दूसरे एडजॉइनिंग सेल्स को कि भाई वायरस आ गया है और आप अपने डिफेंस में काम कर लो। इट इज मतलब मेन फंक्शन यही होता है कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सिग्नल्स। वन इज इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स की कैटेगरी जो है वो डिफेंसेस हैं एक तरह से, वो डिफरेंट सेल्स को बताते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स को बताते हैं, एडजॉइनिंग नॉर्मल सेल्स को बताते हैं कि देर इज सम डेंजर, वायरस आ गया है, उससे हमें बचना है। सो इंटरफेरॉन्स आर हेल्पफुल। देन लैक्टोफेरिन is also a humoral factor. This starves microorganisms of nutrients. ये humoral factor है, लैक्टोफेरिन नाम है, और ये आयरन है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, उनको खुद बाइंड कर लेता है, उनको अवेलेबिलिटी उनकी घटा देता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर आयरन पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो आयरन को खुद ले लेगा और उसको अवेलेबल ही नहीं कराएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल स्टार्व of that particular nutrient. Then there is lactoperoxidase in milk, in breast milk. It also kills bacteria in milk. So bacteria, if some bacteria gains entry in milk, then it will kill bacteria. It is also present in lactoperoxidase enzyme है, it is also present in tears में हम लाइसोजाइम देख चुके हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं प्लस
लैक्टोपेरोक्सीडेज हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। और इन्फेंट्स में जो मिल्क पे सरवाइव करते हैं, तो ये मिल्क वहां पे पहुंच के गट में, इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसल लाइनिंग है वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दिस लाइसोजाइम के बारे में पहले ही देख लिया। इट इज एबल टू किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल को किल करते हैं। देन एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, ये रिपीट हो रहा है क्योंकि दिस इज अ समरी ऑफ humoral factors. Now basic polypeptides released on tissue damage. कुछ basic polypeptides release होते हैं like spermin and spermidine, and these kill tubercle bacilli and some staphylococci. अब इनका mechanism of action उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। इस तरह से ये polypeptides हैं जो helpful हैं innate immunity provide करने के लिए। Then antimicrobial proteamines are there. These are arginine containing substances, proteins which are antimicrobial in nature. Then histones are there which are lysine containing. These provide endogenous danger signal. मैंने अभी बताया था कि वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट किया तो डेंजर सिग्नल्स निकलते हैं। डेंजर सिग्नल उसी तरह से जैसे इंटरफेरॉन कह रहा है दूसरे एडजॉइनिंग सेल्स को सिग्नल दे देता है कि तुम अपना प्रोटेक्शन कर लो, एक सेल इन्फेक्ट हो गई है किसी वायरस से। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज डेंजर सिग्नल। तो दिस इज मीडिएटेड बाय हिस्टोन विच इज अ सॉल्युबल फैक्टर। सॉल्युबल फैक्टर कहाँ मिलेगा? या तो वेन्स और मतलब ब्लड में मिलेगा, लिम्फ में मिलेगा, और जो कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह है वहाँ पे फ्लूइड होता है उसमें मिलेंगे, टिश्यू वाले फ्लूइड में ह्यूमरल फैक्टर्स मिलेंगे। एंड एज अ होल दे विल प्रोवाइड इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी समय आया अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आया, इवन देन इट विल ट्राई टू किल इट। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ बॉडी और कमेंसल्स, ये कमेंसल्स कहलाते हैं जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट बैक्टीरियल फ्लोरा पाई जाती है और उस सारे को अभी तक पहचाना भी नहीं गया है। मतलब इतनी वैरायटी होती है नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा की हमारी गट में, हमारे जो भी इंटरनल बॉडी सर्फेसेस है लाइक ओपन सर्फेसेस जो है वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होती है जिसको कि कमेंसल कहते हैं। और वो एक पार्ट के कमेंसल्स एक तरह के होते हैं, दूसरे पार्ट के दूसरी तरह के होते हैं। कमेंसल्स मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू इन्फेक्ट अस, वो सो लॉन्ग एज देयर हैबिटेट इज फिक्स्ड। अगर वो एक हैबिटेट में है लाइक वो गट में है तो वो गट की वजह से, गट में प्रेजेंस होने की वजह से हमें नहीं हार्म करते। बट इफ दे slip to some other part of our body like गले में आ गए, थ्रोट पे आ गए, किडनी में पहुंच गए, then they might cause serious disease। अब हम देखते हैं कि वो इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं या हमें कैसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दी सप्रेस द ग्रोथ, जबकि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, देन दी सप्रेस द ग्रोथ ऑफ मेनी पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंगाई at superficial surfaces by competing for the essential nutrients। हमारी गट में कुछ गट में माने एलिमेंट्री कैनाल में कुछ बैक्टीरिया रिजाइड कर रहे हैं एंड दे आर लिविंग हैप्पीली देयर। तो दे टेक देयर फूड फ्रॉम आवर फूड, बट अगर हमारे जो फॉरेन हमने बाहर से फूड लिया हुआ है उसमें कोई फॉरेन बैक्टीरिया आ गया तो दे विल compete for essential nutrients with them। और चूंकि वो पहले से established flora है तो mostly they win, वो सारा खाना खा जाते हैं जो essential nutrients है और बाहर वाले को नहीं मिलता है, as a result of which we get immunity from that, immunity or freedom from that particular
pathogen or by production of inhibitory substances such as colsins or acids. तो कॉल्सिन्स और एसिड्स भी ऐसे सब्सटेंस है, इनहिबिटरी सब्सटेंस है. अगर फॉरेन बैक्टीरिया और अटैक करने वाला जो है एसिड में नहीं सर्वाइव कर सकता, कॉल्सिन की प्रेजेंस में नहीं सर्वाइव कर सकता है, तो दैट विल बी किल्ड. फाइनली सेल्स की एक और कैटेगरी है लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स क्या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड वन सच एग्जांपल इज NK cells. NK cells का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल किलर सेल. सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. हम एक बार फिर से देख लें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने क्या देखा? फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर में स्किन आ गया, म्यूकस आ गया, सीलिया आ गया, वॉशिंग एक्शन, कफिंग, स्नीजिंग, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन, टेंशन, हार्मोन्स, एज, स्पीशीज एंड स्ट्रेन, इंडिविजुअल, जेनेटिक फैक्टर्स. देन बहुत से केमिकल्स और बायोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं जगह जगह. सेबेशियस ग्लैंड जो सिक्रीट करती है उसमें सिक्रीशंस में होता है, एक पीएच एक पर्टिकुलर होगा और केमिकल्स होंगे जो किल कर देंगे. टीयर्स और जितने ओपन सरफेसेस हैं हमारे जिनके थ्रू हमारी बॉडी में कुछ भी जा सकता है वो प्रोटेक्टेड है. पीएच उसका कुछ होस्टाइल पीएच होगा, उसमें वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा ऑलरेडी प्रेजेंट होगा जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को एंटर नहीं होने देगा. इफ दे एंटर they will be killed. और अगर वो बॉडी में ब्लड तक आ जाते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स किल करते हैं उनको और उनको वो एंगल्फ करके एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और प्लस वो इम्यूनिटी इंक्रीज भी करते हैं. एंड सिमिलरली मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स हैं जो मोनोसाइट्स ब्लड में है, मैक्रोफेजेस टिश्यूज में है जो कि हर इन्वेडर से डील करने की कोशिश करते हैं. दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इज नो नीड ऑफ प्रायर कांटेक्ट. फर्स्ट कांटेक्ट में ही वो उनको किल करते हैं. और फिर फाइनली ये समरी थी हमारी ह्यूमरल फैक्टर्स की कि जितना ऊपर डिस्कस किया है उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं. तो सीरम में प्रेजेंट है कुछ कुछ, कॉम्प्लीमेंट एंड एंटीबॉडीज, नॉन एंटीबॉडी फैक्टर्स हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, प्रोपर्टिन, बीटा लाइसिन, इंटरफेरॉन्स, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम, बेसिक पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अगेन जो टिश्यू डैमेज पे रिलीज होने वाले स्पर्मिन, स्पर्मिडीन है, प्रोटियामीन है, हिस्टोन है. ये सारे किसी न किसी मैकेनिज्म से उसको किल करने की कोशिश करते हैं. जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या फॉरेन पार्टिकल है उसको एलिमिनेट करते हैं. और फाइनली पूरे बैक्टीरियल फ्लोरा ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एज कमेंसल्स हैं. वो सरफेसेस पे रिजाइड करते हैं, परमानेंटली रहते हैं और दे फ्लरिश विदाउट गिविंग एनी डिजीज टू अस अनलेस अनटिल उनको उठा के कहीं और अपनी बॉडी किसी वजह से वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट में स्लिप कर जाते हैं. तो वो दूसरों फॉरेन बैक्टीरिया से खाने के लिए लड़ाई करते हैं और इनहिबिटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करके उनको किल करके बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. फाइनली ये भी एक तरह का सेल है जो वाइट ब्लड सेल है और नेचुरल किलर है. ये भी नेचुरल इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आगे के लेसन्स में हम ग्रेजुअली इन सेल्स के बारे में जानेंगे और बहुत सी बातें अभी भी इन्नेट इम्यूनिटी में जानने की हैं. उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे. आज के लिए इतना ही. इफ यू लाइक माय लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब इट, like it and share it. Thank you.